अगर ऐसे आंसर्स नहीं लिख सकते ना तो आंसर्स लिखो ही मत। ऐसे आंसर्स लिख के मैंने इंग्लिश टॉप करी, फिर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में इंग्लिश ऑनर्स डिग्री करके वहां पे भी टॉप किया, इंटरनेशनल डिबेटर बना, इंटरनेशनल ऐसे राइटर बना। What's up guys, welcome back to Grand Cat and today is going to be a very critical video. If you're giving your board exams in English, I want you to watch this from start to end. Don't skip it under any circumstances. Give me इतने साल लग गए मुझे in order to understand what actually gets the most amount of numbers in English, and I'm going to tell you how to get those lovely marks. Okay, I'm going to divide it into a few steps और हर step हम examine करेंगे through a sample question जिसमें मैं आपको live लिख के दिखाऊंगा कि मैं कैसे ये आंसर लिखता। Okay, so the first step, the first rule I want you to understand is the 1 2 3 rule. ये आपको बताता है about the basic structure, the basic syntax of an answer, और अगर ये आपके long answers में नहीं है specifically, आपको नंबर बिल्कुल कटते हुए दिखेंगे। So हर एक long answer के ना तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन, नंबर 2 इज बॉडी, नंबर 3 इज कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हो? इंट्रोडक्शन में यू राइट द ऑथर नेम, यू राइट द नेम ऑफ द चैप्टर और द टाइटल ऑफ द चैप्टर, एंड यू कनेक्टेड विद बेसिक थीम्स अबाउट द चैप्टर। फॉर एग्जांपल, इन द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनल लेसन टेकन बाय एम हैमिल इन द स्टोरी द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डॉडेट। इसमें हियर्स हाउ आई वुड राइट द इंट्रोडक्शन। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डॉडेट एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ नेशनलिटी, लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन, वॉर एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पीस। तो इसमें हमने टाइटल बता दिया ऑफ द चैप्टर, राइटर का नाम बता दिया और बेसिक मेन थीम्स ऑफ द चैप्टर बता दिए। सो नाउ द एग्जामिनर थिंक्स ओके, इस बच्चे ने पूरा चैप्टर कम से कम पढ़ा तो है। देन कम्स द मोस्ट क्रिटिकल पोर्शन, the body. Remember guys, इस 1 2 3 rule में you also need to remember the 10 80 10 rule. इसका मतलब है that 10% of your word limit needs to go to the introduction, 80% of it needs to go to the body, and the rest remaining 10% needs to go to the conclusion. अब body के बारे में समझ लेते हैं। तो जब आपको एक question मिलता है specifically long में, I want you to actually think about the question and jot down a few points जो आपके दिमाग में आ रहे हैं at the last page of your answer sheet using a pencil. So इसमें आपको आ रहा होगा about the villagers, about Franz's lesson on participles, about how M. Hamel used to go fishing and neglect his lectures, and how Franz felt regret at not having attended the lectures. ये सारी चीजें जैसे आपने मेरे साथ अभी सीखी हैं, I want you to write them down at the end of your answer sheet. Okay? Now body paragraph में I want you to elaborate on each and every piece of evidence, every point in the story that you just recollected in your head, because यही आपकी body बनाने वाली है। Body में हम basically story लाइन डिटेल्स, एग्जांपल्स और एविडेंस ऑफ आवर आर्गुमेंट को प्रेजेंट करते हैं। एंड गाइस रिमेंबर, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो, यू कैन स्किप द इंट्रोडक्शन, यू कैन रिटेन द कंक्लूजन, बट इट्स नॉट नेसेसरी। शॉर्ट आंसर्स में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट फोकस ऑन द बॉडी। बॉडी ना आप टिपिकली 1 से 2 पैराग्राफ्स में लिखते हो, एंड आई वांट यू टू फोकस दीज पैराग्राफ्स ऑन द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स। हर एक पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहा है ना इज नॉट गोइंग टू बी रिलेटेड टू द क्वेश्चन आस्क्ड, सो आई वांट यू टू एक्चुअली नैरो देम डाउन, बिकॉज आपको वर्ड लिमिट के अंदर रहना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। I want you to focus on the main points that come to your head. Here's a sample body of the question that हम एक साथ examine कर रहे हैं। Through the impending loss of French language and culture in Alsace and Lorraine, the final lesson of M. Hamel highlights the importance of preserving one's linguistic heritage. For instance, when M. Hamel announces that the only language taught in schools would be German, it serves as a wake-up call for Franz and his classmates, prompting them to realize the value of their native language. They regret the fact that they did not pay attention in the lectures, and regret the fact that they got punished too. They now realized the meaning of education and the value of it as well. This realization is further emphasized when M. Hamel passionately describes the beauty and clarity of the French language, instilling a sense of pride and regret among the students. Moreover, the last lesson strengthens the bond between teachers and students, as M. Hamel demonstrates unwavering dedication to his students' education despite the difficult circumstances in his private life surrounding his sister. His act of defiance in writing Vive la France on the blackboard symbolizes his love for his country and his commitment to preserving its language and culture. This gesture leaves a profound impact on Franz and his classmates, illustrating the influence of educators in shaping students' resistance in face of an opposition. Conclusion में ना जो आपने बॉडी में लिखा है, इंट्रोडक्शन में लिखा है, I want you to combine them. उसको एक साथ लाओ, जैसे वो ड्रैगन बॉल जी में फ्यूजन डांस नहीं होता, गोकू वेजिटा गोजिटा बन जाते हैं, बिल्कुल। I want you in the conclusion to summarize your main points in a line or two. बस कि की आर्ग्यूमेंट्स इनकैप्सुलेट हो जाएंगी और जो आपका एग्जामिनर है वो सोचेगा ओ माय गॉड इसकी थिंकिंग कितनी स्ट्रक्चर्ड है। दैट इज द पर्पस ऑफ अ कंक्लूजन। ओके, और हाँ इसमें याद रखना, कंक्लूजन में डू नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस कभी भी कोई नए पॉइंट्स इंट्रोड्यूस मत करना। दैट इज अ बिग नो नो। इस क्वेश्चन की हम कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन, द फाइनल लेसन ऑफ M. Hamel in the last lesson by Alphonse Daudet epitomizes the profound impact of cultural identity, loss and resilience, underscoring the enduring power of education and language in shaping individual and collective identity, especially in times of war. So basically जो भी हमने बात करी थी in the introduction and in the body, ये बहुत neatly tie together हो जाती है in the conclusion. Now let's get to an even more important point. Rule 2, write the keywords and highlight them. Guys, in your preparation जब आप line by line पढ़ रहे होगे, by the way you don't even need to do this if you're a member of our crash course because we take care of that for you, but in your preparation जब आप chapters पढ़ रहे हो ना, I want you to highlight certain points जो मैंने आपको last videos में बताए हुए हैं. I want you to highlight them, the important phrases, the important words जो chapters को define करते हैं. For example, in the last lesson there is a line, will they make them sing in German? Even the pigeons जो आपके question में भी काफी बार पूछी जाती है, और things like signing off, Captain Von Stahl,
that becomes a very pivotal moment in the rat trap chapter. As for example, you obviously need to write about M. Hamel's clothes as he was wearing them on the day of the final lesson and why that is significant. Obviously आपको पता है कि वो सिर्फ special occasions पे वो पहनते थे, लेकिन फ्रांस को पता नहीं था कि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्पेशल ओकेजन है. Incorporate whenever you can, and guys आपको ये करने की जरूरत नहीं है. If you're a member of Grand Acad's crash course, if you don't know Grand Acad has a crash course, you need to download our app where you will find this, and हम पूरा लाइन बाय लाइन चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, हर चैप्टर को खत्म कर देंगे. अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है या फिर आपको टेंशन है अबाउट योर मार्क्स और योर रिविजन, दिस कोर्स इज परफेक्ट फॉर यू. इट्स डिजाइन फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन. साइन अप फॉर इट टुडे. डोंट मिस आउट गाइज. 95 मार्क्स का ये बहुत ही छोटा बात है. इट्स लाइक अ शॉर्टकट. ओके, रूल 3 जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यू नीड टू यूज फैंसी लैंग्वेज. अब सर बोलोगे ओ माय गॉड आप तो इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो, मैंने आपका अभी देखा सैंपल आंसर, ये तो बहुत फैंसी भाषा है. ट्रू, आई अंडरस्टैंड, बट तुम्हारे लिए आई हैव अ ट्रिक यार. तुम ग्रैंड अकाड के बच्चे हो, तुम कैसे लेफ्ट आउट फील कर सकते हो? आप जब लिख रहे होगे ना, बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है दैट यू आर यूजिंग थिंग्स लाइक वेरी सैड, वेरी एंग्री, वेरी ब्यूटिफुल. A simple trick to incorporate fancy words in your answer is to stop using the word very. By the way, fancy words incorporate करके आपके मार्क्स बढ़ेंगे. Don't go all शशि थरूर हर लाइन में नहीं, लेकिन एक एक आंसर में एक एक शब्द तो डाल दिया करो. ये मेरी सीक्रेट टिप है, बाकी टीचर्स आपको उल्टा बताएंगे, बट आई एम टेलिंग यू दिस, सो ट्रस्ट मी. तो वेरी सैड के बजाय यू कैन राइट डिप्रेस्ड. वेरी एंग्री के सिवाय यू कैन राइट इन्फ्यूरिएटेड. वेरी ब्यूटिफुल के सिवाय यू कैन राइट स्टनिंग. एंड हे यू गो, हेयर्स समथिंग टू हेल्प यू. ये एक चार्ट है. वेरी कॉमनली आप बोलते होगे वेरी सैड, वेरी ब्ला ब्ला ब्ला. तो ये जो चार्ट है आपको बताता है वेरी के सिवाय आप क्या यूज कर सकते हो. सो इस चार्ट को रट लो, इन वर्ड्स को यूज करो, और आपके एग्जामिनर बोलेंगे ओ माय गॉड क्या शशि थरूर टाइप बच्चा निकला है. Number 4 is going to be the dumping technique. नहीं, I'm not talking about your ex. So dumping technique में basically मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ. Many times there will be questions that you either don't understand or that you haven't prepared, and that's okay. But what's not okay is you leaving them. Guys, अगर आपको पता नहीं ना कि एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, या फिर आपको रिकॉल नहीं हो रहा and you're tensed, आप आंसर छोड़ रहे हो या एक बहुत बुरा आंसर लिख रहे हो उसके बारे में, stop, take a breath. डंपिंग टेक्निक आपको ये बताती है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द रैट ट्रैप एंड यू डोंट नो द स्पेसिफिक्स ऑफ दैट क्वेश्चन, जस्ट राइट अ समरी ऑफ द रैट ट्रैप, दैट्स इट. समरी लिख के आपके एग्जामिनर को एटलीस्ट इतना तो पता चलेगा कि आपने ये चैप्टर पढ़ा है, और वो आपको नंबर लिबरली दे देंगे. रूल 5, की वर्ड डिड्यूसिंग फ्रॉम क्वेश्चंस. हर क्वेश्चन आपको आंसर बता देता है थ्रू 3 कीवर्ड्स. लिसन वेरी केयरफुली. हर क्वेश्चन में ये 3 चीजें होते हैं. नंबर 1, थीम कीवर्ड जो आपको मेन थीम बताता है. नंबर 2, लिमिटिंग कीवर्ड जो आपके क्वेश्चन के स्कोप को नैरो कर देता है, जो आपको बताता है क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है. और एक होता है एक्शनेबल कीवर्ड. एक्शनेबल कीवर्ड आपको बताता है कि मैं आंसर कैसे लिखूं, आप किस चीज के बारे में लिखो, कैसे लिखो. फॉर एग्जाम्पल इन द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनल लेसन टेकन बाय एम हैमल इन द स्टोरी द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डॉडेट. उसमें मेन थीम यानी कि थीम कीवर्ड है फाइनल लेसन. लिमिटिंग कीवर्ड जो क्वेश्चन को नैरो कर देता है वो है स्टोरी. एक्शनेबल कीवर्ड है सिग्निफिकेंस जो आपको बताता है कि ये क्वेश्चन बहुत जेनेरिक है, जनरल है और बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है ये एक समरी टाइप क्वेश्चन है. अब आप हर क्वेश्चन जो भी आप पढ़ोगे, आई वांट यू टू मेक अ नोट ऑफ दिस. ओके, दैट शुड बी इट गाइज. इससे आपके क्वेश्चन आंसर गेम इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना, आई बेट यू आर गोइंग टू स्कोर वंडरफुल मार्क्स. एंड गाइज प्लीज डोंट बी टेंस्ड. योर ग्रैंड अकाड स्टूडेंट्स और ग्रैंड अकाड के स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली चैंपियन हो जाते हैं. प्लीज टेंशन मत लो, आराम से प्रिपरेशन करो, कोक पियो, पॉपकॉर्न खाओ, ठीक है. उसको खाते वक्त हमारे वीडियोस देख लो. मेरे से कोई बात करनी है कमेंट्स में कर लो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. डोंट लीव योर फ्रेंड्स बिहाइंड गाइस. एंड हाँ, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, डाउनलोड द ग्रैंड अकाड ऐप, join our Promax English Clash course, and make sure that you score 95+. Okay, cool. All right, till next time, keep winning, you champions.